Good morning, everybody. I am Dr. Mukesh Pareek. I'm live. Try to show your presence. Kindly try to show your presence so that we can start the class. Hello. Good morning, everybody. Should we start then? Okay. I can see some of you, your names, and at the beginning of the class, I beg your pardon for the slow connectivity. It's very poor network today because of the clouds. As you all know, it's Shravan. Okay, you're from America, Eric Bunal. Hello. I'm happy that you are attending my class. Okay, so because of the request of some of my students, I will be talking sometimes in Hindi, but because there are certain students from the other parts of the world, so I will try to be in English most of the time. And before I begin today, I want to pour out my heart. I want to talk about something which really disturbed me in the morning. Uh, Actually, in the morning, when I was just thumbing through, just looking at the posts and the comments on my YouTube channel, because mostly what I do, I put this video on YouTube channel after completing that, because some of my students who have taken admission in the batches are not on Facebook. And there was a comment which really disturbed me. That person was writing that don't read, do more practice, and teach practically and not theoretically. Then I thought like I would be talking about this particular aspect today, that the medium of online, whether it is any app, it is Google app or Zoom app or say FB or say a YouTube channel, we see that uh, these applications are uh, modes where we can connect with people. And any professor, if you have seen any professor, for that you have to go to a university. And even on YouTube also I've seen that professors, they read and teach. Our main purpose is to teach, to make the point clear, whether we read it or say we write it or we just see the copy and the notebook, and that doesn't matter. So don't consider that professors are heroes who have crammed up their dialogues, and then they are because that is all kind of virtual world, and we are using virtual space, but we are very much engaged with the phenomenon activity, and that is called education. Okay, so today's class is. Before I begin, I would also ask you to split your screen, go to my website mukeshparik.com and go to my blog so that you can read side by side certain things which I am going to teach today's class. Okay, this lecture is on two three other aspects. Yesterday we talked about different terms like wasal, fief, and wars of roses, 100 years of wars, and we tried to understand the whole aspect of history of English literature, that how wars affected, how the spirit of nationalism came, how the aspect of chivalry was considered important in that age. And today, I'm just continuing that topic. And in the medieval age, medieval is actually a word for the age or the period from 500 to 1500. Some
professors of history, some theorists have called it dark ages also. Okay, but exactly it is not termed as dark ages. Some people call it middle age, some people call it as per English literature is concerned, we call the period before 1066, we call it Anglo-Saxon, or say Old English, and then we call it after 1066 we call it Anglo-Norman, and then onward we call it like English. अब बात करते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें से. सो द लेक्चर विच आई हैव बीन डिलीवरिंग, इफ यू फॉलो देम डिट्टो, you will come to know that many questions are being asked from these points. और ज़रूरी नहीं है, because अभी मैं देख रहा हूँ that most of the teachers who are training students for NET, they rely on the questions which were asked earlier in the exam, but mostly they don't repeat the question. Okay, so you should rely on the lecture, like what the teacher is telling you. And now let us directly come to the medieval period. Now as I told you that to the 15th century, this is the first point. Okay. One aspect that how it starts. Actually, before 5th century, there was an influence of the Roman Empire. Okay, so with the dwindling of the stopping or the seizing of the Roman things in the Western world, slowly and steadily we move towards the medieval period. So it starts with the fall of the Roman Empire. That is the second point. Third point is called, first of all, we should understand that the historians, they have divided the whole history into the classical antiquity, where we study the Greek writers and the Latin writers, or the Latin period, or say Greek period, and the medieval period, which we are going to study today, and the modern period. Okay. And some critics say that modernity starts with the advent of the printing press. Modernity starts with the establishment of the universities and all. And the history of the establishment of the universities in the Western world, it starts with the 11th century or the 12th century. इस पे भी हमें कई बार वो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं. ठीक है, अब बात चलती है कि जो मिडाइवल पीरियड है, जिसमें हमें लिटरेचर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिडाइवल पीरियड को भी हिस्टोरियंस ने अर्ली, हाई और लेट मिडाइवल पीरियड में डिवाइड किया है. अर्ली, मिडल और लेट. तो इसमें मिडल की जगह हम लोग हाई वर्ड यूज करते हैं. सो अर्ली हो गया, हाई हो गया, और लेट मिडाइवल पीरियड हो गया. ओके, एंड गुड मॉर्निंग भावना. सो दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ मिडाइवल पीरियड, जिससे हमें समझ में आता है, क्योंकि मिडाइवल पीरियड से होते हुए जब हम लोग एंग्लो सेक्शंस इंग्लिश की तरफ से होते हुए मिडिल इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारा जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम समझ पाते हैं. इसीलिए ये हिस्ट्री पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ओके, उसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फ्रॉम 500 AD, आई एम रनिंग फीवर फॉर लास्ट 2 days, 500 to 1500 particular period is called the medieval period. उसके बाद आता है कि कई स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट इज रेनेसा, एंड व्हाट इज द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा, एंड व्हाट इज द कल्मिनेशन ऑफ द, कल्मिनेशन का मतलब होता है कंप्लीट होना, पीक. ओके, मिडाइवल एज की पीक क्या है? सो मिडाइवल एज की पीक मानी जाती है टर्क्स का अटैक ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल. इसको आप लिख लीजिए क्लास में अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं ब्लॉग पे आजकल हर चीज नहीं दे रहा हूं, सो दैट स्टूडेंट्स स्टार्ट अटेंडिंग द लेक्चर सीरियसली. अदरवाइज दे विल स्टार्ट थिंकिंग के द टीचर विल अपलोड एवरीथिंग देयर ऑन द ब्लॉग. इट्स नॉट लाइक दैट. आई विल बी स्पीकिंग मोर, आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स मोर, एंड ओनली पुटिंग सर्टन थिंग्स ऑन माई ब्लॉग. तो जो लोग मुझे सीरियस स्टूडेंट जिन्होंने अटेंड करना स्टार्ट कर दिया है, वो ब्लॉग पे चले जाइए, मेरी वेबसाइट खोल लीजिए, अपनी जो स्क्रीन है मोबाइल की उसको स्प्लिट कर लीजिए. मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है mukeshpareek.com या englishcosmos.org. उस पे जाके आप ब्लॉग पे आ जाइए, और ब्लॉग पे आने के बाद आपको आज की क्लास दिख जाएगी 23 जुलाई का, क्या क्या मटेरियल हम वहां से लेने वाले हैं. बाकी तो चीजें जो हैं वो लेक्चर में आ ही रही हैं. सो वी आर डिस्कसिंग मिडाइवल पीरियड. अब बात चलती है कि
टर्क्स का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जब टर्क्स का मतलब होता है मुस्लिम्स, ओके, तो मोहम्मदन्स और मुस्लिम्स ने जो अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है, और कस्तुतुनिया बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। इस्तांबुल आज की जगह, आज का जो उसका नाम है वो इस्तांबुल है। लेकिन आस्क यू, शायद ये क्वेश्चन किसी सेट में पूछा भी गया है, ओके। एंड उसका जो अटैक हुआ था दैट वाज 1453, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेनेसां। तो रेनेसां भी एक टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कुछ लोग इसको रेनेसेंस बोलते हैं, सम प्रोफेसर्स प्रोनाउंस इट लाइक रेनेसां। इट मीन्स अब कई लोगों को देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस। सम स्टूडेंट्स say that it is rebirth of knowledge, लेकिन आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि what is that rebirth of knowledge, you know, how came into being and how it affected literature and the social and political atmosphere of England and the Western Europe particularly, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको मालूम होगा कि क्रिस्टोफर जो कोलंबस था, उसकी जो फर्स्ट वॉयज थी अमेरिका की, वो 1492 में हुई थी। अब ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है, इंग्लिश लिटरेचर के नेट में आ रखा है, क्यों? क्योंकि दैट पीरियड इज नोन एज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू लर्निंग्स। जैसे आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप यस यस लिखते जाइए बीच बीच में। यू कैन शो द लाइक बटन, यू कैन प्रेस द लाइक बटन सो दैट यू नो आई कैन फील दैट स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद। अच्छा, जब हम लोग मिडाइवल एज की बात करते हैं, मिडाइवल एज का कल्मिनेशन की बात करते हैं, अटैक ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करते हैं, इन सब डेट्स पे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। दे हैव बीन आस्किंग अस क्वेश्चंस ऑन दीज थिंग्स, ओके। एंड देन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इट बिगैन इन 1517। सो एग्जैक्टली दिस होल मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? द इन बिटवीन पीरियड, क्लियर। अच्छा, उसके बाद यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट वॉर्स ऑफ रोजेस। अब वॉर्स ऑफ रोजेस का वी आर नॉट इंटेंडिंग टू गिव यू द डिटेल ऑफ द वॉर्स ऑफ रोजेस बिकॉज यू नो दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट yes, one thing is important that they can ask us, so I'm giving you certain detail that, as you all know, that wars of roses was actually the kind of conflicts between the two clans of English. अंग्रेजों के यहाँ पे दो पर्टिकुलर घरानों के बीच के युद्ध का नाम है वॉर्स ऑफ रोजेस, एंड दे वर फॉट बिटवीन लैंकास्ट्रियंस एंड यॉर्क। ये भी आपको याद रखना है, लैंकास्ट्रियंस एक खानदान का नाम है और एक खानदान का नाम है यॉर्क, क्लियर। अब आपको इतना सा याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू नो I can speak on a particular topic for hours and hours, you know, but my purpose here is to give you more and more you know, textual and factual details so that you can solve the paper, clear. So House of Lancastrian and House of York, they were the main fighters, number one. Number two, Henry Tudor, write down, from the Lancastrian में से Henry Tudor जो था, that was the king, you know, who won the war. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हु वन द वॉर। सो हेनरी ट्यूडर, उसका नाम ट्यूडर था। अच्छा, जब हम ट्यूडर का नाम लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद से जो प्लेंटेजेंट एक खानदान का नाम है, मतलब ट्यूडर से पहले प्लेंटेजेंट फैमिली राज कर रही थी। जैसे अपने यहाँ होता है ना सिसोदिया, अलग अलग नाम होते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे। तो लैंकास्ट्रियन, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये जो हमारा यॉर्कशायर है, मतलब हेनरी ट्यूडर जो है ट्यूडर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है और प्लेंटेजेट फैमिली का खात्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेनरी ट्यूडर ने वॉर्स ऑफ रोजेस में रिचर्ड थर्ड को हराया। रिचर्ड थर्ड पे क्या क्वेश्चन आता है नेट के अंदर, दैट रिचर्ड थर्ड वाज द लास्ट मोनार्क ऑफ इंग्लिश हु वाज किल्ड इन बैटल। अब आप अंदाजा लगाइए how you can relate today's lecture or this particular point with yesterday's lecture कि उन्होंने mercenaries हायर करना स्टार्ट कर दिया। They started hiring soldiers। तो जो राजा थे वो खुद डायरेक्ट नहीं जा रहे थे, किसमें? युद्ध में। They did not participate in the war directly. Who? The kings of England, and they started hiring professionals. So ये Wars of Roses का end है, that it established the Tudor monarchy and it eliminated the Plantagenet dynasty. Richard III was the last king who fought, also who was killed in a battle, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन रहा है कि Wars of Roses जो है
वो लड़ी गई, ओके, और अराउंड दे वर फॉट फॉर, इनको सिविल वॉर्स भी बोलते हैं. वाई सिविल? बिकॉज द इंग्लिश पीपल दे देमसेल्व्स आर, देयर क्लैंस आर फाइटिंग इन बिटवीन अमंग देमसेल्व्स. अब इसमें कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? सो देयर वर 9 फाइट्स, लिख लीजिए. दे फॉट फॉर 9 टाइम्स. ऐसा नहीं है कि भाई 30 साल तक लगातार ही युद्ध चलता रहता है. देयर वर सर्टन skirmishes, देयर वर सर्टन अटैक्स, देन दे स्टॉप्ड, देन अगेन दे स्टार्टेड. तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको वॉर्स ऑफ रोजेस से रिलेटेड बता दी. सो इन द मिडाइवल एज ये सब चीजें चल रही थी. साइड बाय साइड रिलीजियस चीजें इंप्रूव हो रही थी. साइड में यूनिवर्सिटीज में चीजें चल रही थी. एंड ओवरऑल पीरियड वाज मूविंग टुवर्ड्स द काइंड ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, टुवर्ड्स दी. When we were talking about wars and literature, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, whenever there are lot many wars happening around, it mostly affects the stability of a country. Stability is ultimately or say directly proportional to literature. क्योंकि जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया को लेते हैं, when we take North India into consideration, then we see that classical dance form, classical singing is not as elaborate as we compare it, if we compare it with the west, the southern things. तो आप देखते हैं साउथ इंडिया में चाहे आप कपड़ा ले लीजिए, गहना ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए, दे आर मोर एडवांस्ड इन ऑल दीज थिंग्स. इससे क्या पता चलता है कि दे वर लेस अटैक्स, एंड इन नॉर्दर्न इंडिया दे वर मोर अटैक्स. तो विद मोर अटैक्स द पीपल वर डिस्टर्ब. जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते से अटैकर्स यूज्ड टू कम. तो वो एक दे अल्टीमेटली गिव एन ओवरऑल कैरेक्टर, जिससे कभी इफ सम पंजाबीज आर वाचिंग मी, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज आई लिव्ड इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड आई एम बेसिकली अ राजस्थानी. So let me tell you the basic personality trait of these two people, like how history and wars they affect things of the trait of your personality, your literature, your art form. कि पंजाब में लगातार जब पाकिस्तान नहीं बना था और अफगानिस्तान तक इंडिया की बाउंड्री थी, तो जब उसके बाद जब अटैक्स स्टार्ट होते हैं विद द, अच्छा ये रेनेसां से लिंक्ड है बच्चों. If you read the history of medieval period and Renaissance, then you come to know that after the caliphate, जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, उसके बाद से जो खलीफा आए और उन्होंने जो मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह से अपने आप को फैलाया, that really disturbed the history of ये जो पूरा एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज. एंड अल्टीमेटली when I mostly deliver this lecture, I mostly talk about crusade. हैं जिनको क्रूसेड, when they read the history of English literature, the starting few pages, they don't exactly understand the meaning of crusade. चलिए क्रूसेड का मतलब बताइए क्या होता है क्रूसेड? उसको जिहाद भी बोल देते हैं. जिहाद का एक्चुअल मीनिंग बड़ा ट्विस्टेड करके समझाया जाता है, बट क्रूसेड इज एक्चुअली द वॉर ऑफ डोमिनेंस, एक्चुअली द वॉर ऑफ रिलीजन कह दिया जाता है. बट उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सो दैट यू पीपल कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड. चलिए एक बात बताइए कि जो जूडियो क्रिश्चियन रिलीजन है उसकी क्या हिस्ट्री है और हम कैसे समझें कि क्रूसेड क्या होते हैं. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1400 जो 53 एज है, the date when Turks attacked Constantinople, that city in Italy, आप ऐसे मान लीजिए, that was ultimately an empire of Byzantine empire. और जब हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स बाइजेंटाइन पढ़ते हैं तो वी कम अक्रॉस बाइजेंटाइन एम्पायर. बाइजेंटाइन का रेफरेंस तो आपने W.B. Yeats की पोएम्स में पढ़ा होगा. दैट W.B. Yeats कहते हैं दैट आई विल गो टू द गोल्डन सिटी ऑफ बाइजेंटाइन. इसका मतलब है कि जब हम रेनेसां पढ़ते हैं, जब मिडिल एजेस पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों का रेफरेंस आता है. अब ये रिलीजियस वॉर क्या है, इसका एक बहुत छोटी सी कहानी से आप समझिए. देखिए जब हम एडम और इव की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एडम एंड इव, तो जब उनका ओरिजिनल सिन होता है, तो ओरिजिनल सिन के बाद में गॉड एक्सपेल देम फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन. तो उनके जब बच्चे होते हैं उसमें एक होता है अब्राहम. बस ऐसे बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ. अब्राहम की जो वाइफ है वो है सारा. सारा की वाइफ काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं और यहाँ तक कि अब्राहम शायद 100 ईयर्स के हो गए हैं, उनकी कोई नहीं है, दे आर इशूलेस. सो अच्छा वो कबीले हैं उस वक्त वहाँ पे चारों तरफ, देर आर मोर
clans kind of things, and they were not leading an empire actually. तो हैगर एक उनकी कॉन्क्यूबाइन होती है. कॉन्क्यूबाइन का मतलब क्या होता है? एक तरह की आप ऐसे मान लीजिए काइंड ऑफ सर्वेंट. तो सारा जो मालकिन है वो ऐसे कहती है कि ये हैगर के साथ में आप एक गंधर्व विवाह कर लीजिए. इट मीन्स विद माई कंसेंट यू कैन स्लीप विद दिस सर्वेंट ऑफ माइन, एंड इफ लेट अस सी इफ वी गेट सम इश्यू और नॉट. इश्यू मतलब बच्चा, तो हमारा राज चल जाएगा. देयर विल बी एन अ पर्सन whom we can inherit, we can give our one who can inherit our property and land. तो हैगर के बच्चा होता है, उसका नाम होता है इस्माइल. अच्छा, इन बिटवीन क्या होता है कि सारा गेट विद द फैमिली वे, मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाती है. हमेशा याद रखिएगा, वी डोंट यूज द वर्ड प्रेग्नेंट इन पब्लिक. ये डॉक्टर्स की मेडिकल लैंग्वेज में आता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई. इट्स वेरी शेमफुल. सो वी मोस्टली से दैट माई वाइफ इज कंसीव्ड और शी इज ऑन द फैमिली वे. So sometimes when I explain things, I feel a bit ashamed of myself, like to explain the things I have to use these. But in the social English, one who has a good English, one who knows the exact way of English, saves himself from using these kind of words and all. So when Sarah is on the family way and she gets a child, in between Hagar has already begotten the child. उसका नाम इस्माइल रखते हैं. बट जो सारा है, द रियल वाइफ, द लेजिटिमेट वाइफ ऑफ अब्राहम के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, बिकॉज द वन ही फॉल्स इन द चोजन रेस. बाइबल की कहानियों में आपको ये सब पढ़ने को मिलता है. एंड जब हम लोग पीएचडी किया करते थे तो आवर टीचर्स यूज्ड टू put a restriction on us, like without reading Bible you cannot read the novels and all, because English novels are very tough to understand without reading Bible and biblical stories. And even they asked us to read the Quran also. Okay, because these are all interlinked stories. आपको मालूम होना चाहिए कि ईसा मसीह जो है वो इस्लाम के अंदर एक पैगंबर के तौर पर आते हैं, बट ही इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट मोहम्मद साहब को माना जाता है. सो इट इज इन द लाइन एक्चुअली. अब ये क्या है, हैगर के बच्चा इस्माइल कहीं प्रॉपर्टी ना ले ले तो सारा क्या करती है, उसको वहां से निकलवा देती है. तो अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं आगे जाकर के, वो और इधर जो सारा के जो बच्चे पैदा हैं उसका नाम ये लोग रखते हैं आइजैक. Okay, so the clans of Isaac and then the people, they keep fighting. Okay, and when they keep fighting, they ultimately give birth to crusades and all. So ये एक बहुत, from this you can understand the whole Greco-Roman एक अलग चीज आ जाती. Greco-Roman were pagan. Okay, Greece और Roman का जो empire, that is quite a different thing. And Judeo-Christian का मतलब होता है ये क्योंकि बाइबल की जो कहानी है, द वर्ड बाइबल इटसेल्फ, आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल केवल क्रिश्चियंस की नहीं है. आपको याद होगा 2 या 3 लेक्चर पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट कैनन एंड एपोक्रिफा. कैनन मींस समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द क्लैरिक्स का मतलब होता है चर्च के पोप वगैरह. दोज हु एक्सेप्ट समथिंग व्हिच इज रिटन एंड इट इज ओके. जैसे अभी आपने सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा, आसाराम जो बापू कथा राम कथा कहते हैं, उनको काफी ज्यादा जलील किया गया है. और बहुत से ऐसे कथावाचकों को जिन पर भी अदर देन हिंदुइज्म और सनातन धर्म को थोड़ा सा भी लचीला बनाने की बात कही तो उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया है. सो दे थिंक दैट दे से समथिंग व्हिच इज नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स. सो इट्स द सेम थिंग, something which is according to the clerics or the established religion, something which is there is called canon or canonical, and which is not there written or against that is called apocryphal. Apocryphal is kind of blasphemous things. तो आपको कई बार बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि जब हम बहुत डिटेल में कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, when we don't attend lectures, when we don't read books, तो कई बार टीचर की बात समझ में नहीं आती है. तो कोई बात नहीं, कोशिश करें. मैं क्रूसेड पे लेक्चर दे रहा हूं कि क्रूसेड्स क्या है. एंड मिडाइवल एज, ये जो रेनेसा आता है उसमें क्रूसेड इज द बेसिक पॉइंट, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर जो अटैक होता है, उस अटैक की वजह से जितने भी स्कॉलर्स हैं, दे टू सेव देमसेल्व्स एंड देयर बुक्स एंड ऑल, दे स्प्रेड इन द होल यूरोप.
तो इटली से होता हुआ ये जर्मनी, फ्रांस होते हुए इंग्लैंड आता है, एंड देन वी सी दैट एग्जैक्ट इंग्लैंड में जो रेनेसा आया वो 200 साल लग गए उसको आने में. सो इट इज ऑल अबाउट द सेंट्रल पॉइंट इज crusades. So you can understand the importance of crusade. And crusade is what? The religious attacks, the religious battles between the Christian and the Muhammad. And फिर उसके बाद में वॉर्स ऑफ रोजेस की बात हो गई. अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगा व्हेन आई डाइग्रेस्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू. नाउ आई एम कमिंग टू वॉर्स ऑफ रोजेस अगेन, एंड आई एम टेलिंग यू वन इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच दे कैन आस्क अस, एंड दैट इज बॉसवर्थ फील्ड. बॉसवर्थ फील्ड का नाम लिखिए, BOSWORTH, बॉसवर्थ फील्ड. अब आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज बॉसवर्थ फील्ड एक्चुअली वॉर्स ऑफ रोजेस की जो लास्ट बैटल है दैट वाज फॉट इन बॉसवर्थ फील्ड, वो जगह का नाम है. क्लियर? And that actually ended the wars of roses. So they can ask you a question because it ultimately eradicated or say put a knot, NAUGHT, knot means एक zero कर दिया Plantagenet dynasty को. So this is all about this. Now let us talk about अब मेरे एक बार आपको blog पे आना पड़ेगा because I want to show you something there. Come to my blog on my website mukeshpareek.com and respond me with yes that you have come and you are seeing something there. What are you seeing? What is the name of that picture? Kindly tell me so that I can continue my lecture. मेरे blog पे आइए mukeshpareek.com या englishcosmos.org. अपने मोबाइल स्क्रीन को स्प्लिट कर लीजिए so that you can see what is being uploaded, has already been uploaded over there. You can find the lecture under the title Renaissance and Renaissance Humanism, because now I am turning my lecture towards Renaissance Humanism. If your response comes, I will start speaking. On my screen there is not a single response. Yes. And there comes the response, and that is Vitruvian man. चलिए फटाफट से ब्लॉग पे आइए. देखने में तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, आई थिंक मोर देन 100 and 200, but response is very meager. Only 2 people are responding. That is not fair. I'm not a hero to watch me like that. We are here gathered to study. Hello. Vitruvian man. Can you see this picture over here? जब हम लोग हमारे एग्जाम में Vitruvian man पे क्वेश्चन आ सकता है. If you open any book, if you open any site on Renaissance humanism, you come to know about Vitruvian man, this picture. I mostly show this picture in my classroom through PPT and all when I deliver a lecture on Renaissance humanism. अच्छा, आपको ह्यूमनिज्म का मतलब पहले समझना होगा कि व्हाट इज ह्यूमनिज्म एक्चुअली. ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि जब रेनेसा, व्हेन रेनेसा स्टार्टेड, रेनेसा जब आया तो जो क्लासिकल एंटिक्विटी का जो जैसे ग्रीक पर्टिकुलर जो वर्क्स थे उनके ट्रांसलेशन को पढ़ना, इट वाज कंसिडर्ड टू बी टू बिकमिंग एन एग्जैक्ट मैन. जैसे हमने अभी 2 दिन पहले ऑफ स्टडीज ऐसे पढ़ा था, and we came to know that what writer was talking about. क्यों पढ़ाया मैंने? If you understand that एक पर्सन जो 14 बार नेट है, 3 बार JRF है, डबल MPhil है, PhD है, इतने सालों से लगातार पढ़ा रहा है, अगर वो कोई भी टॉपिक बोल रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, इसका मतलब है कि वहां बहुत कुछ छुपा हुआ है. एंड इफ यू देखिए एजाज अहमद जी, mukeshpareek.com वेबसाइट खोलिए, उसके सबसे ऊपर ब्लॉग ही दे रखा होता है, उस ब्लॉग को टच कीजिए. ओके, तो अगर कोई आदमी उसने अपनी आधी जिंदगी पढ़ाई को दे दी है लिटरेचर में, और अगर वो कुछ कह रहा है, सेइंग समथिंग, तो इसका मतलब है कि वहां इंपॉर्टेंट, वो चीज इंपॉर्टेंट है. और मैं आप सबसे, जो लोग मुझसे बाद में जुड़े हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर्स हीरोज नहीं होते हैं. प्रोफेसर्स होते हैं जिनका सारा दिन जाता है पढ़ाई में. तो वट एवर मीडियम दे यूज, इफ दे रीड समथिंग, अगर मेरे बाल बने हुए नहीं है, इफ आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ हीरो, या कि मेरा वीडियो जो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, दैट डजंट मैटर.
what matters more is the information, the point, which can improve you or which can disturb you. कहते हैं कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब नहीं करता है कोई लेक्चर, तो इसका मतलब वो लेक्चर नहीं है। ठीक है, मैंने जो बोला समझ में आया आपको? आप पहले ब्लॉग पे आइए, देखिए विट्रूवियन मैन। अब डा विंची को आप सब जानते हैं, मोनालिसा जिन्होंने बनाई है, द लास्ट सपर पेंट किया है। ओके, तो डा विंची की ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको विट्रूवियन मैन बोलते हैं। विट्रूवियन मैन कौन थे? एक्चुअल में एक रोमन आर्किटेक्ट थे, और उनकी एक मतलब उनके नाम पर ये पेंटिंग है, और इसमें आदमी की बॉडी को दिखाया गया, ध्यान से देखिए, और वो एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में है। इसका मतलब है कि ये जो रेनेसा ह्यूमनिस्ट्स होते हैं, ये क्या मानते हैं, क्या मानते हैं बताइए? ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द स्लाइड, ओके, विच इज टू बी परफेक्टेड। ओके, इट्स अ क्लीन स्लेट। जिस स्टूडेंट को रेनेसा ह्यूमनिज्म समझ में आएगा, वही यूटोपिया समझेगा, वही ड्राइडन को समझ पाएगा, मिल्टन को समझ पाएगा। वरना सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करते रहो, और वो जो 2-4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, दे आर जस्ट स्टाइलिंग एंड प्रेजिंग देमसेल्व्स, उसके सिवा आपका कोई भला नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक माई लेक्चर्स वेरी सीरियसली एंड इंप्रूव योरसेल्फ एंड बिकम प्रोफेसर। हो सकता है किसी दिन मेरी मुलाकात किसी यूनिवर्सिटी में आपके साथ हो जाए, आप और मैं कलीग बन के पढ़ाएं बच्चों को। ओके, और हमारा पढ़ाना क्या है बताओ? इज इट फॉर द सेक ऑफ ओनली गेटिंग मार्क्स, मनी, बिल्डिंग नेशन, बिल्डिंग वर्ल्ड? हम लोग वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं। सो हमारा जो एफर्ट है बहुत बहुत नोबल है। तो रेनेसा ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं वापस से बोलता हूं, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा डाइग्रेस हुआ। अच्छा, अब आइए थोड़ा टॉपिक पे कि क्या चाहते हैं रेनेसा ह्यूमनिस्ट। रेनेसा ह्यूमनिस्ट, दे वांट अ काइंड ऑफ पेडेंट्री इन देयर स्टाइल। देखिए, जब हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं या हम कॉलेज जाते हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है? एक तो आकाश वर्मा जी, इसको ब्लॉग बोलते हैं, ब्लॉक नहीं बोलते, BLOG। mukeshpareek.com टाइप कीजिए। mukeshpareek.com टाइप करने पर मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, www.mukeshpareek.com। उस पे जाते ही आपको ऊपर ही ऊपर ब्लॉग दिखेगा। वहां नहीं दिख रहा है तो englishcosmos.org टाइप कर लीजिए। उस पे जाते ही जहां पे फोन नंबर दिए, वहां पे 3 लाइन्स हैं, उनको टच कीजिए तो सबसे नीचे आपको मेरा ब्लॉग दिखेगा। ब्लॉग पे जाओगे, टच करोगे, ऐसे ढूंढना पड़ता है, एग्जैक्टली इट्स नॉट गिवन देयर। कम बैक। सो लिखिए, एक नैरो पेडेंट्री, एक टर्म लिखिए आप लोग। ओके, नैरो पेडेंट्री। व्हाट इज पेडेंट्री? किसी को पता है तो बताइए पेडेंट्री का मतलब। पेडेंट्री मीन्स द वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड पेडांट। पेडांट मीन्स वन हु शोज ऑफ समथिंग। शोज ऑफ का मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं। और एक बात पहले कह दूं कि रेनेसा ह्यूमनिज्म ने कहीं ना कहीं, अच्छा, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन सारे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं हल्का सा। जैसे यूफिमिज्म पे क्वेश्चन आता है ना, यूनिवर्सिटी विट्स पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद मार्लो और शेक्सपियर, ये जितने भी लोग हैं, दे वर टॉट इन यूनिवर्सिटी। शेक्सपियर को छोड़ दिया जाए तो, बट शेक्सपियर के जो टीचर थे जेनिंग्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, he was very much keen that the students of even grammar school which were in England, वो लोग एंटिक्विटी की चीजों को पढ़ें। तो क्लासिकल एंटिक्विटी क्या है, ह्यूमनिज्म वर्ड कहां से आया, ह्यूमनिज्म वर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक टर्म लिखिए आप लोग, स्टूडिया ह्यूमैनिस, लिखो स्टूडिया, STUDIA, स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस। स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस एक टर्म है, इसको आप लिखिए। स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस का मतलब क्या है? एक्चुअल में स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस एक टर्म यूज की गई थी। पीडिया एक वर्ड है ग्रीक में, जैसे एनसाइक्लोपीडिया होता है ना, विकिपीडिया जिस पे बना है। सो पीडिया, पीडिया का स्पेलिंग है PAIDEIA, पीडिया, जिससे पेडागॉजी और ये सारे वर्ड बने। इट मीन्स एक्चुअली इट्स अ ग्रीक रूट, इट मीन्स नॉलेज। ओके, तो नॉलेज का ग्रीक कल्चर में जो बेस था, वो रेनेसा के दौरान कुछ क्लासिकल टीचर्स ने
हाँ, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं कल एक बार यूट्यूब फेसबुक पे आके आपसे कहूँ कि आप लोग सब मेरे यूट्यूब पे आ जाइए, ताकि मैं यूट्यूब पे क्लास लूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मी फीस एंड दे आर अनेबल टू बिकॉज ऑफ लो कनेक्टिविटी समटाइम्स दे आर अनेबल टू अटेंड द लेक्चर। उनके यहाँ बाढ़ भी आ रखी है कुछ लोगों के यहाँ पे, दे वर कंप्लेनिंग कि हमारे यहाँ। So then I'm bound to upload this lecture on YouTube. That is the reason. चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस ये आपने लिख लिया होगा। अब स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस जो वर्ड है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, लिखिए पहले तो। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रीवियम, लिखिए TRIVIUM। एक आता है ट्रीवियम, दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट मोड ऑफ। और एक आता है इसमें क्वाड्रीवियम। दोनों पे नेट में क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। ओके, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर। ट्रीवियम लिखिए TRIVIUM। आप यस बोलते जाइए ताकि मुझे पता चले। लेट अस मेक दिस मोड ऑफ टीचिंग लाइक वी आर स्टडिंग इन एन ऑफलाइन क्लास। ओके, ट्रीवियम लिख लिया आप लोगों ने। अब ट्रीवियम का मतलब क्या होता है? तीन चीजें उस वक्त पढ़ाई जाती थी, ग्रामर, लॉजिक एंड रेटोरिक। इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, ग्रामर एंड रेटोरिक। हालांकि ग्रीक कल्चर में लॉजिक को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, बट रेनेसा के जो स्कॉलर्स थे यूनिवर्सिटीज में, जिसमें आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, दैट पेट्रार्क, लिखिए पेट्रार्क। पेट्रार्क इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। रेनेसा ह्यूमनिज्म का फादर जो है वो कहा जाता है पेट्रार्क को। और मैंने अपने ब्लॉग पे देखिए लिस्ट ऑफ फर्स्ट ह्यूमनिस्ट की लिस्ट डाल रखी है, पढ़िए उसमें से क्या है, पढ़िए क्या लिख रखा है। जो क्वाड्रियम की बात है वो भी करता जाऊंगा साथ साथ में, बट बिफोर दैट लेट अस रीड फर्स्ट ऑफ ऑल द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट्स। इसमें आपने देखिए क्या क्या, पेट्रार्क का नाम सबसे पहले आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसा ह्यूमनिज्म। सेकेंड वन इज जियोवेनी, थर्ड वन इज सैल्यूटाटी। कई बच्चों को सैल्यूटाटी का मतलब पता नहीं है, लेकिन वो नाम है सिर्फ, इतना याद रखिएगा। एंड द फोर्थ वन इज ब्रैचियोलिनी। ओके, ब्रैचियोलिनी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो ये चार नाम आपको याद रखने, लिख लेना है। और उसमें मैंने लिखा हुआ है पेट्रार्क इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ठीक है, अच्छा अब ये जो ह्यूमनिज्म था, इसमें ग्रामर पढ़ाई जा रही है। अच्छा ग्रामर से क्या होता है बताइए, रिस्पॉन्ड। ग्रामर से क्या होता है? क्यों हम टीचर्स, या तुम लोग जब टीचर बन के पहुंचोगे तो तुम कहोगे कि ये ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करो। बिकॉज समवेयर इफ यू गो टू द डायलेक्ट्स, आप अपने अपनी लोकल लैंग्वेज, हरियाणवी, उड़िया, बिहारी, मारवाड़ी, गो टू द डायलेक्ट्स, द अनस्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, तो आप जाओगे तो आप यू विल फाइंड दैट पीपल स्पीक समटाइम्स। तो हम पढ़े लिखे लोग जो कोशिश करते हैं कि लोग जैसे माई सेल्फ डॉक्टर पारेक, अब ये माई सेल्फ से जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है ग्रामेटिकल इट इज रॉन्ग, बिकॉज माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब। इसका मतलब है यू कैन नॉट यूज इट इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। सो माई सेल्फ कह करके बात करना, इट्स मोर अमेरिकन। एंड अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। आप एक बार हमारे घर में गेस्ट आई, librarian. She must be watching me sometimes because she's a Facebook friend also. She's a librarian in America, and because of some members of family who are there in America, she came as a guest. And when she talked to me, she said that she knows only the people, best professors in America who talk the way we talk. We means people of good professors, particularly in England, in India. Then I said, why? Then she said, because you never used any wanna or gonna kind of words in your English. That is the words we use there, mostly Negro, the people who are uneducated. So, because I keep teaching this in my spoken classes, that we should not use wanna and gonna, these kind of, Englishes. So, and me and my friend will come to you. This is another a very common error. आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हमारे नेट के सिलेबस में एक यूनिट है दैट स्कोप ऑफ इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया एंड द प्रेजेंस
प्रेजेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इन सब में ये सब चीज़ें आती हैं। और अभी लास्ट नेट में जो क्वेश्चन आया था कि हम लोग हमारी जो इंडियन इंग्लिश है उसमें क्या क्या खामियां हैं, तो द काइंड ऑफ बेसिक एरर्स में एक तो हम एस्पिरेटेड नहीं बोलते हैं। जैसे मुझे बोलना है पेन, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा जैसे एक नेटिव स्पीकर बोलता है, बाइलेबियल और थोड़ा सा प्लॉजिव के तौर पे, जैसे पेन, मैं पेन ना बोल करके बोलूँगा पेन, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो व्हेन वी लर्न ऑल दीज थिंग्स ग्रामेटिकल, बिकॉज आप ग्रामर की अगर डेफिनेशन जाके देखेंगे देन यू विल कम टू नो दैट phonetics also come in that, pragmatics come in this, everything, आपको मालूम है लॉजिक क्या होता है, हमें फर्स्ट पेपर सिलोजिज्म एंड ऑल, ओके। एंड थर्ड पार्ट इज rhetoric. What is rhetoric? Rhetoric means how to win people. आज rhetoric को यूज करना उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब you have to learn, move people, you can convince people. अगर मैं बहुत ज्यादा eloquent तरीके से बात करूं तो जो कोर्टली पीपल हुआ, एक होता है ना, जब जैसे हम शेक्सपियर पढ़ते हैं तो जब हम एज यू लाइक इट पढ़ते हैं तो वी सी दैट इन एज यू लाइक इट मोर देन हाफ ऑफ द ड्रामा इज शिफ्टेड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आपने देखा है कि वो गांव के लोगों को दिखाया बोलते हुए, ओके, क्योंकि वो शेक्सपियर है, वो एक ब्रेन है, वो माइंड है। मैं ये लेक्चर देना चाह रहा हूं आपको कि हाँ प्रियंका सिंह, वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, यू शुड ज्वाइन इट। आप मुझे हेलो बोल देना व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर 9828402032। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, ओके। और आप सभी ने मेरा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई बोल सकते हैं एंड आस्क मी सो दैट आई कैन सेंड यू द लिंक एंड ज्वाइन इट सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड, ओके। चलिए मैं टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि मुझे फालतू बात करने की आदत है, लेकिन लिटरेचर से रिलेटेड, नॉट सेल्फ प्रेज। चलिए तो मैं भूल ही गया प्रियंका का आंसर देते देते कि मैं क्या बात कर रहा था। चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। ट्रीवियम में तीन चीजें हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट रेटोरिक। आई थिंक रेटोरिक का मतलब होता है हाउ टू विन पीपल, ओके। और मैं शेक्सपियर की बात कर रहा था कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, दे डोंट ट्राई टू विन। Kundan ji is saying Modi ji uses it. All the leaders of the world, सारे तो नहीं, because अभी ऐसे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी बात को ना कह के जोर शोर में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करते। जैसे आपने मेरा एडवर्टीजमेंट ही नहीं देखा होगा बिल्कुल भी। मुझे थोड़ी शर्म सी आएगी अगर मैं अपने बारे में बहुत सारा बोलने लग जाऊँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि लगता है मैं थोथा चना हूँ, अंदर से कम करके बजाना पड़ रहा है अपने आप को ताकि लोगों को मेरी आवाज़ आए। If there is a sincere student, one who can attend my lecture for 5 minutes can understand कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बात चल रही है कि rhetorics जो होती है वो क्या करती है अल्टीमेटली, when we talk rhetorically we want to win people somewhere। और अगर किसी को आपको नुकसान पहुंचाना है, उनसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट लेना है, तब आप rhetoric का यूज करते हो। आप उनको विन करना है। जैसे जूलियस सीजर में एक rhetorical स्पीच आती है, वो मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा। अभी टॉपिक पर आते हैं। अब आते हैं क्वाड्रियम पे आते हैं। क्वाड्रियम पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वाड्रियम में लिया जाता है म्यूजिक, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी बोथ आर राइट, ओके। तो क्वाड्रियम में क्या क्या आता है, फिर से देखिए। म्यूजिक मतलब कि अगर आप क्वाड्रियम सीख रहे हो, क्वाड्रियम को हायर माना गया है और ट्रीवियम को लोअर माना गया। लोअर इन द सेंस के अगर वो लिस्ट बनाते हैं तो म्यूजिक, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड देन ग्रामर, लॉजिक एंड रिटोरिक। और ये जो मैंने अभी एक टर्म लिया था स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस, ये वर्ड से ही आज ह्यूमैनिटीज आ गया। और आज हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पोइट्री, मॉरल फिलोसफी, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। आजकल इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है ह्यूमैनिटीज में। सो टू सम ऑफ यू लाइक दैट दिस कैन बी योर टीचिंग इज योर एडवर्टाइजमेंट। सॉरी बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, बट या लेट्स सी। बट आप लोग what service you are rendering to the mankind। आप में से मैंने देखा है कोई भी स्टूडेंट मेरा वीडियो शेयर ही नहीं करता है। आप YouTube पे बैठ करके मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको उसी वक्त इसको शेयर करना चाहिए। शेयर करने से ऐसा लगता है कि हाँ यू आर केयरिंग फॉर द अदर पीपल सो दैट अदर पीपल कैन बी बेनिफिटेड ऑफ दिस। तो पहले आप शेयर कीजिए, उसके बाद ही मैं इसको पढ़ाऊंगा। शेयर करके मुझे बोलिए हाँ वी हैव शेयर्ड। एंड इफ यू गो टू माई यूट्यूब चैनल यू शुड ऑल्सो, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो, यू शुड शेयर इट so that students should know
thanks to this lockdown period that I came out of my offline classes and I came on this channel, और मैंने लोगों को पता चला हमारे बारे में, मलिक जी, राजा बाबू जी, देयर आर सो मेनी पीपल, व्हाई डोंट यू शेयर इट, इसको शेयर कर लीजिए अपने फेसबुक पे। अब टॉपिक पर आते हैं, मैं एक बार फिर से लिस्ट बोल रहा हूँ, ट्रीवियम एंड क्वाड्रियम, ये जो जिसको हम बोलते हैं स्टूडिया ह्यूमैनिटाटिस, जो कि एक पार्ट था कि यूनिवर्सिटीज में आपको इनको पढ़ाना है इन सब्जेक्ट्स को। तो उसमें म्यूजिक आएगा, अर्थमेटिक आएगा, ज्योमेट्री आएगा, एस्ट्रोनॉमी आएगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वन एंड द सेम थिंग मानते हैं उस जमाने में, ग्रामर, लॉजिक एंड रेटोरिक। अभी बार बार मैंने बोल दिया है सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, और इसमें कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि अब ये जो रेनेसा, जो मैंने बताया कि जो पेट्रार्क हैं, जियोवेनी बोकाशियो है, बोकाशियो का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुन रखा है ना। आप लोगों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि आप शेयर कर रहे हैं मेरे वीडियो को। बोकाशियो का नाम सुना होगा आपने, बोकाशियो जिससे हमारे चौसर जो थे वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है ना। अब मैं नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, कि हालांकि हमारा टाइम हो रहा है, मैं आज का लेक्चर अब सेकेंड पार्ट की तरफ ले जा रहा हूं। मैं रेनेसा ह्यूमनिज्म पे आई विल टॉक टुमारो। अभी हम चलेंगे, जो आप देखिए, आगे बढ़िए, ब्लॉग पे आगे बढ़िए, यू विल फाइंड वन एडमंड स्पेंसर सोनेट नंबर 75। जवाब दीजिए जल्दी से, सो दैट वी कैन रीड अ टेक्स्ट ऑल्सो, बिकॉज द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग माई लेक्चर डेली, दे नो इट दैट वी read some part from the history of English literature, and some text we also read. Clear? So share my video please, and share my YouTube channel's link also, so that you can help mankind. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर पता चलेगा हमारे बारे में, then they will come to know that standard lectures are being delivered here. Okay. चलिए, लेट अस रीड अबाउट एडमंड स्पेंसर। अच्छा, एडमंड स्पेंसर के बारे में हम और भी बात करेंगे, पहले हम ये सोनेट पढ़ते हैं। पहले आप रिस्पॉन्स कीजिए दैट यू हैव गॉट दिस सोनेट, स्पेंसर सोनेट ऑन माय ब्लॉग। आमिर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी। Urdu, I tried to learn in my life. It was my fourth language when I was in Jammu and Kashmir. I was in Kathua. My primary education is from there. And when we were promoted to the fourth standard, they started teaching. Then my father was transferred to Chandigarh, and then I started Punjab. चलिए, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर करेंगे मेरे वीडियोस को। जब आप लोग सब शेयर करेंगे, उसके बाद ही मैं नए वीडियोस और बहुत सारे पुराने वीडियोस अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। नाउ लेट अस रीड दिस सोनेट। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। अच्छा, एमोरिटी, आपने एमोरिटी का नाम सुना है? एमोरिटी इज द सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट जब कहा जाता है तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं कई एग्जाम्स के अंदर। सम पीपल से दैट पोएट्स पोएट वाज कॉल्ड बाय चार्ल्स लैम, एंड समवेयर इट इज रिटन दैट इट वाज यूज्ड बाय ले हंट। ओके, तो आज का आपका रिसर्च का जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पोएट्स पोएट, दैट हु यूज्ड द टर्म पोएट्स पोएट फॉर स्पेंसर। अच्छा, स्पेंसर ने एमोरिटी को जब लिखा था, एमोरिटी मीन्स, एमोरिटी का मतलब किस किस को पता है? AMORETTI। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टर्म एमोरिटी? बताइए, एमोरिटी का मतलब मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, बट दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। एमर, देयर इज अ वर्ड इन लैटिन, एमर, AMOUR। एमर विंसेंट ओमनिया याद है ना आपको? सेंट लॉय का जो प्रायरस पहनती है चौसर के अंदर। एमर से बना है एमोरिटी। रेटी, जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे कभी हम लोग किसी चीज को जब स्मॉल बोलते हैं तब हम ये कर देते हैं, तो एमोरिटी मीन्स स्मॉल क्यूपिड्स। इसका मतलब है एक एक सोनेट। सोनेट इज, आपको मालूम है, सोनेट पे मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। इट मीन्स स्मॉल पोएम ऑफ से 14 लाइन्स। क्लियर? एंड स्मॉल पोएम जो है वो स्मॉल गॉड है, लव गॉड है। इट मीन्स इन एवरी पोएम द पोएट हैज स्टफ्ड his feelings of love. That is why he termed the collection of 88 sonnets as
immorality, number one. Number two, this was published along with epithalamion. अब epithalamion मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में आपको, पूरा टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा उसका आपको, कुछ कुछ स्किप करके. epithalamion का मतलब लिख लीजिए, मैरिज सॉन्ग, द वेडिंग सॉन्ग जिसको बोलते हैं. इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ यू आर इंडियंस एंड यू मस्ट हैव सीन, जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो बताइए क्या गाया जाता है शादी से पहले. औरतें क्या गाती हैं, बताइए मुझे सब लोग. शादी से पहले औरतें बैठ करके क्या गाती हैं? वो लोग शादी के गीत गाती है ना, बना गाती हैं, बनी गाती हैं. हरियाले बन्ना कच्ची कलियां मत तोड़ो, मालन देगी गालियां मोरा बन्ना. ये एक बना है ना. छज्जे ऊपर पतंग उड़ाए, हरियाला बना नजर ना आए. सो इस तरह के जो गीत गाते हैं, दे आर कॉल्ड बना बनीज, यू नो, देर दे आर प्रेजिंग. अब हल्दी जब लगती है तो बहुत सुंदर गीत गाया जाता है, जिसमें इफ यू आर टू मच एसोसिएटेड, अटैच्ड in your culture, in your ethnic culture, in your around you, आप हरियाणा से हैं, that doesn't matter. Just see what women are singing by that time, and suppose if you translate that into English, you can be a writer. There's nothing. Alexander Pope ने कुछ नहीं किया. Alexander Pope ने केवल लैटिन की चीज़ों को, ग्रीक चीज़ों को उन्होंने ट्रांसलेट किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, आज वो एक ओरिजिनल राइटर के तौर पर फेमस है. बट इफ यू रीड लैटिन, you come to know, my goodness, he has been translating many things. Okay. Yeah, I sang one line that okay, like in haldi, when turmeric is anointed, the would be, जिसको बोलते हैं दूल्हा और दुल्हन, the bridegroom and the groom, तो वो लोग जब ये हल्दी गाते हैं तो बहुत ही, हमारे इधर राजस्थान में बहुत सुंदर तरीके से गाया जाता है. I link it that when they are using the turmeric powder on the as an anointment to make the bride beautiful, in the same way epithalamion is written. तो जब मैं आपको epithalamion पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, मैरिज सॉन्ग क्यों है. अब एक बात आती है कि वेस्टर्न कल्चर में पेट्रार्क है, या हम जैसे अर्ल ऑफ सरे है, वायट है, इनको लेते हैं जो कि मेजर सोनेट राइटर्स हैं. इनकी सोनेट्स आर नॉट बेस्ड ऑन देयर, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव और मेलंकलिक एलिमेंट है. ओके, बट this is the only sonnet sequence in which the writer is not only wooing, not only proposing, but culminating that activity of love to marriage. अब एक बात बताइए, किसका प्यार पवित्र केवल फ्रेंडशिप कार्ड दे रहा है लड़का, या जो प्रपोज कर रहा है कि मुझसे शादी करोगी? पहली ही मुलाकात में अगर इफ समवन से इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग दैट वुड यू मैरी मी, इसका मतलब है दैट ही loves that particular girl in such a manner कि वो उसके साथ एक परमानेंट लाइफ बिताना चाहता है, परमानेंट से. तो उसकी वजह से अच्छा, एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़, दैट एंग्लिकन जो वेडिंग सेरेमनी होती है चर्च में, उसकी बहुत सारी टर्म्स इसमें यूज की गई हैं. दैट इज वाई दिस इमोरिटी, इट इज द मोस्ट फेमस एंड stylish and totally different collection of sonnets. अब पढ़ रहा हूं. One day I wrote her name upon the strand. Strand मतलब समुद्र का किनारा. But came the waves and washed it away. लहरें आई और उसका, मेरी beloved का नाम मिटा करके चली गई. Again I wrote it with the second hand. The writer says that I again wrote her name. So it means the poet has been shown as a love-lorn one. But came the tide and made my pains his prey. प्रे, पेन को पर्सोनिफाई किया गया है. प्रे का मतलब शिकार बनाना. फिर से एक लहर आई और उसने मेरे पेन्स को अपना शिकार बनाया. मतलब आई वॉज लव लॉन, आई वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ माई बिलव्ड ऑन द स्ट्रैंड्स ऑफ द शोर ऑफ ओशन, बट द वेव्स वर कमिंग एंड इरेडिकेटिंग, और से इरेजिंग, सॉरी, इरेजिंग शुड बी द करेक्ट वर्ड, द नेम. Vain man, said she, that does in vain essay. Essay means effort, कि तुम फालतू में ही प्रयास कर रहे हो नाम लिखने का. A mortal thing so to immortalize, that your passion is
mortal and you cannot immortalize one thing. And there is a pun in the line, because आप अपनी beloved का नाम लिख करके उसको अमर बनाना चाहते हो, वो नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक ट्रांजिएंट ह्यूमन बीइंग है, एफीमेरल है, मॉर्टल है, उसको तुम इमॉर्टल नहीं कर सकते. फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके, मैं खुद मर जाना चाहता हूं या चाहती हूं. एंड ईक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज, मैं भी चाहता हूं कि जैसे मेरी बिलवड का नेम मिट गया, मेरा नाम भी मिट जाए. नो सो क्वोथ आई, मैं बोला नो, लेट बेसर थिंग्स डिवाइज, घटिया चीजें, बेसर मीन्स लोअर चीजों का इस्तेमाल करो. टू डाई इन डस्ट, घटिया चीजों को मरने दो, डस्ट में मिलने दो. बट यू शैल लिव बाय फेम, बट तुम्हारा नाम जो है वो मैं फेमस कर दूंगा. माई वर्ड्स योर वर्च्यूज रेयर शैल एटर्नाइज व्हेन आई राइट योर नेम. सो नाउ देयर इज अ डायलॉग इन द पोएम, a kind of what we call it dramatic monologue, in which there are three people. One is the waves talking, another one is the poet, and वो कह रहा है कि इसका नाम जो है यहाँ लिखने से अमर नहीं बनेगी, इसको तू कविताओं में लिख दे. And you all know that this was the major theme of many of the sonnets, like sonnet number 16 by Shakespeare, sonnet number 18, sorry, by Shakespeare. To die in dust, but you shall live by fame. My words, your virtues rare shall eternize. And लेकिन वो कह रहा है कि मेरा गाना अपनी बिलवड के बारे में कह रहा है, that आप मेरी बिलवड के जो वर्च्यूज है उसको एटर्नल नहीं बना सकता मैं, इसमें इतनी वर्च्यूज है. Now he's in a hidden manner praising the virtues of the beloved. And in the heavens write your glorious name, और मैं कविताएं लिख करके तेरे नाम को हेवन में मशहूर कर दूंगा. It means I'll make your name eternal, where when as death shall all the world subdue. Everything, every person, जब डेथ आती है तो सबड्यू कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं. Our love shall live and later life renew, and our love will live forever once your name is written. This is sonnet number 75. This is very famous. एंड उसके ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है एमोरिटी के बारे में, आप उसको पढ़िएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट राइम स्कीम. जब हम शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम की बात करते हैं तो इट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ओके, बट इसमें आपको पता है एक इंटरलॉकिंग होती है. इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जैसे ए बी, तो दो ए के बीच में एक बी, ऐसे आप इसको याद रखेंगे. ए बी सी डी. ओके, तो डी इज इंटरलॉक बिटवीन द टू सी. ओके, and EF दिख ही रहा होगा, और GG. So they have already asked us the rhyme schemes of Milton's sonnets, rhyme schemes of Spencerian sonnet, rhyme schemes of Shakespearean sonnet. उसमें मैं एक दो बातें और कर लेता हूँ. वोल्टा की बात कर लेते हैं. That is the third quatrain जब आता है, because sonnet is divided into sometimes they are divided into 3 quatrains and 1 couplet. Some original style was like 1 octave and 1 sestet, लेकिन 1 octave can be divided into 2 quatrains. क्वाट्रेन का मतलब 4 लाइनें, चौपाइयां. तो जो थर्ड चौपाई होती है, क्वाट्रेन होता है, देयर स्लाइटली द थीम इज चेंज्ड. ओके, उसको बोलते हैं वोल्टा. वोल्टा एक जैसे एक वर्ड है वोल्टफा इंग्लिश में, वो VOLTEFAC, जिसका मतलब होता है यू टर्न. सो यू कैन रिमेंबर इट विद वोल्टफेस, जिसको वोल्टफा बोला जाता है. रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टर्म इज वोल्टफा. एंड वोल्टा जो वर्ड सोनेट में यूज करते हैं, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ यू टर्न, कि कहाँ वो नेगेटिव बात कर रहा था लेकिन अचानक से एट द एंड वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है. सोनेट बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे मैंने और दी है, दैट इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट द राइम स्कीम, लाइक स्ट्रैंड, अवे, हैंड, प्रे, ऐसे इमॉर्टलाइज, डिके, लाइक ऐसे, ये जो लास्ट वर्ड्स का राइम स्कीम है, इसमें ऐसे कहा जाता है कि डॉक्टर जॉनसन, जिन्होंने लाइफ्स ऑफ पोइट्स लिखी थी, जिसमें 52 पोइट्स उन्होंने लाइफ लिखी थी, जिसमें लाइफ ऑफ कूली में मेटाफिजिकल पोइट्री की डेफिनेशन उन्होंने दी थी, जिसमें बार बार नेट में क्वेश्चंस आते हैं. उन्होंने थोड़ा सा राइम के वर्ड को चेंज कर दिया. RIME को उन्होंने लिख दिया. ही वाज द फर्स्ट वन हु चेंज्ड द स्पेलिंग राइम, RHYME. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर चेंज, विच वी कॉल इट एटिमोलॉजिकल चेंज और से ऑर्थोग्राफिक चेंज, जिसमें स्पेलिंग को बदला गया. एंड वी अलाउ डॉक्टर जॉनसन, बिकॉज डॉक्टर जॉनसन वॉज अ जीनियस. इवन हिज एज इज नेम्ड आफ्टर हिज एज. वेरी रेयर नंबर ऑफ poets are there whose age is named after them, like Shakespearean age. In the same way, in the same manner, we have leaving one goldsmith. Don't understand what are you saying, Mr. Akash. Okay, so rhyme.
तो RHYME, राइम जो वर्ड है वो लिखा हुआ है, प्लीज नोट में लिखा है, मेरे ब्लॉग पे देखिए लिखा हुआ है, द स्पेलिंग राइम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थ्रू एन एटिमोलॉजिकल एरर। वो उनसे एक एरर हो गया था। इसे कहते हैं, एक राइटर जिसने डिक्शनरी लिखी इंग्लिश की 1755 में, ही कमिटेड एन एटिमोलॉजिकल एरर। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप माफ कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पोइट्स भी गलतियां कर चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब and you can be benefited out of that. Kindly share the video. Thank you very much. जिनको एडमिशन लेना है, नए बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, कल भी काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं। You can take admission and feel free that your net will be clear. Thank you very much.